standards and levels. एक आध मैं चीज पूछता हूँ, ठीक है? You have heard that the CBSE has changed the pattern of questions. Yes. What all changes have been introduced by NEP? आप बताइए. Okay. So the questions, instead of testing your recall or memory, they will be giving marks on the basis of your analytical skills or competency. Let me give you one question of the old type and convert it into the new type, so that it's clear how the question paper will be different this time. Suppose earlier they used to ask what are the fundamental rights in the Indian Constitution. You are studying political science? Yes, sir. Good. So this is one of the most important things you must be knowing. In modernity, one of the greatest achievements apart from science is the evolution of rights. That we are not like the subjects of the Mughal Empire or the Sultanates, etc. Who used to bleed, who used to kneel down before not only the emperor, even before the local zamindar. There were no rights. The rights started evolving this notion in Europe. Okay. First Bill of Rights was introduced in England in 1689, but it came to us with the Constitution. Suppose the question earlier was, what are the various fundamental rights and when were they introduced? Okay. This is a recall-based, memory testing question. Suppose it has to be converted into a competency question. Can you frame another question which is testing competency rather than recall? Suppose you are the teacher and you have to set this paper. I just want to check whether you understand how the questions will be different. It can be converted into a paragraph in which a situation is being given in which one of the rights of an individual is being prohibited, being snatched from that person. So they can ask that which right is being snatched from the person by giving a situation. Okay, good. There can be a source-based question, giving a short para, and then asking, in this particular incident narrated there, which particular right has been taken away or affected, or there is a struggle for some right. Good, very good. So you have an idea. It's very nice. What are the other major changes that NEP is introducing now? Regarding exams and syllabus? Collection of themes of chapters of different subjects. Okay. Anything else? Collections were always expected. That is not entirely new. 2-3 things you must be aware. Now you can take an improvement exam. You know about this? Yes. This is very, very big relaxation. Suppose you are unwell on particular day of your exam, or you are not able to reach in time the exam center. So you will have one more opportunity just after 1 month. Up to 3 papers you can appear again. Okay, if you want to improve. This is different from compartment. Compartment means if you have less than 3%, so you sit for the exam again. But now, suppose you have passed the exam, but you want to improve, or you were not able to come to the center that day, so you will have one more chance. You must all know this, okay? Another good thing is that mathematics, which some people found difficult, and because of all this tuition business is going on, is now being made optional into basic and standard maths. Those who want to take up science, engineering, they study higher maths, and then there is an option for simpler maths that also you can clear. This is for 10th class students. So there are some changes. And the biggest change that is being tried, but it's all very messy right now, is that skills are being emphasized more. All students should pick up some skills and not just theoretical knowledge.
and for that, not only they can opt for courses like say coding, okay, they can be a full paper on coding, artificial intelligence, and for that they will also go to the organizations when they will do an internship. You understand internship? What is internship? Yes. बताओ, आप बताओ. Can you tell what is internship? हाँ बताओ. कुछ काम करना मतलब सीखना उसे करना. Okay, or to put it very good. To put it more precisely, you take up an assignment in an actual organization which is performing a task in order to learn, and that counts as your experience and helps you in getting a job also. Okay, so during summer vacation etc., you will be encouraged to. You means the other students will be following you. You are now passing out. So ये कुछ changes NEP में आ रहे हैं, but इसके लिए teachers को भी बहुत कुछ नया सीखना पड़ेगा. It will take time. Right now we are focusing on the challenge before you, that is your board exam that is coming up. तो इससे पहले कि मैं कुछ tips दूँ, आप लोग बताओ किस तरह की जानकारी help आप चाहते हो. Any questions that you have? Then I'll start. Our aim right now is how to score better in board exams. You must be aware that sometimes very hard-working students get a poor result, and sometimes जो फन्ने खा होते हैं उनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है. तो ये तो होना नहीं चाहिए. What do we keep in mind to avoid this unfair consequence? उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं तुम्हारे माइंड में? पहले उनसे स्टार्ट करते हैं, देन आई टेल. नो क्वेश्चन? वो हम लोग तो इन योर एज वी वर फुल ऑफ क्वेश्चंस अबाउट कि सीक्वेंस में आंसर लिखना है कि हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं. So, I am just unable to plan to how to prepare for my board exams. Okay, how to prepare and plan. Okay, I'll come to this point. This is the longest topic, so अभी मैं इसको बोल के cover करूँगा. Anything else you have in mind? February से लेकर से 20 February के आसपास इधर. और लास्ट कब है? 28. So you are all in one section. You have common subjects या अलग-अलग branches? All stream. Arts, commerce, science. अच्छा, आप कॉमर्स के? Commerce. Okay. With maths or without maths? Some of them have maths and some not. Okay. Mixed. Great. Maths का तो मैंने I've told you one new thing that has been introduced. Our target is maximizing our scores in the board exam. उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा? प्रिपेयर कैसे करें? एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होंगे, जस्ट इमेजिन कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है? सॉरी, पैनिक नहीं हो. हाँ, ओके, गुड. देखो, आज मैं इन चीजों की बात कम करूंगा. ये सब लोग तुम्हें बताएंगे मेहनत करो, है ना, वर्क हार्ड, बी रेगुलर, बी डिसिप्लिन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अबव ऑल, है ना. तो ये सब तो कॉमन बातें हैं, है ना. आपको पेरेंट्स भी कहेंगे, टीचर्स भी कहेंगे. हम कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं जो कि इजी टू इम्प्लीमेंट है और जिनको भूलने से वी लैंड अप इन सूप. लैंड अप इन सूप का मतलब पता है कि हम डिफिकल्टी में आ जाते हैं. देखो, हम इसको 4 लेवल पे बात करें. What precautions to take when you are in the exam hall? Okay. Then how do you go about your advanced preparation? लेकिन इसके लिए थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू रेज योर मोटिवेशन लेवल. विदाउट मोटिवेशन तो नींद आती है ना, या फिर दोस्त का कॉल आ गया तो घंटों निकल जाते हैं, राइट. और चौथी हम बात करेंगे कि क्या हमें एआई वगैरह से हेल्प लेनी चाहिए या नहीं, और किस तरह से लेनी चाहिए. ओके,
एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, बाद में पूछ लेना, हम क्वेश्चन आवर के आंसर के लिए 15 मिनट रखेंगे, राइट? तो व्हेन यू आर इन द एग्जाम हॉल, ये चाहो तो नोट भी कर सकते हो, या अगर तुम्हारे पास मोबाइल है, रिकॉर्ड मोबाइल अलाउड हो तो तुम लोग चाहो तो नोट कर लो, वरना भूल जाओ। Be quick. ये सबसे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू फॉर स्कोरिंग वेल, लर्न टू राइट वेरी फास्ट बट with clear legibility. Handwriting should be good without spoiling your handwriting. In fact, मैंने ये एक्सपीरियंस में देखा था, एक दो जो मेरे क्लासमेट्स वगैरह थे, there were some who were not very intelligent, लेकिन वो बहुत स्पीड से लिखते थे and they always generally scored very well. ठीक है, खाली इसलिए नहीं कि तुम्हें बहुत सारे पन्ने भरने, वो पर्पस नहीं है, लेकिन तुम्हारा कोई आंसर छूट ना जाए, राइट, और तुम्हें रिवाइज करने का टाइम मिल जाए। मैं इनफैक्ट ये मिस्टेक करता था, मैं बहुत स्लोली लिखता था, तो मेरे आंसर्स छोटे छोटे होते थे और बहुत सोच के लिखता रहता था। ये सब तुम सोचने का काम पहले करो, जो सैंपल पेपर्स को खूब सारे सॉल्व करो, उसी से हैंडराइटिंग फास्ट होगी और आंसर्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये लिखते रहो बेटा, आई वोंट रिपीट, ओके? व्हाट आर वी डिस्कसिंग? Tips for scoring better in board exam. Try to increase the speed of your writing. It should not be very slow. I don't mean that you write ultra fast. No need. But don't be very slow when you are in the exam hall. जैसे ही तुम्हारे पास आंसर शीट पहले आएगी, है ना? Don't waste time. Fill up the columns carefully, है ना? और बीच में कहीं भी तुम्हारा नाम वगैरह नहीं होना चाहिए, नो प्रेयर की मेरे को ज्यादा नंबर दे दो, बिल्कुल उल्टा असर होता है उसका, है ना? खाली फ्रंट शीट पे तुम्हारा नाम, रोल नंबर वगैरह का जो होगा, फिल अप ऑल दैट बिफोर द क्वेश्चन पेपर कम्स टू यू, है ना? और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आ जाए, गिव 5 minutes टू केयरफुल रीडिंग ऑफ द होल क्वेश्चन पेपर, ठीक है? और उसको आइडेंटिफाई कर लो कि कहाँ चॉइस वगैरह है, विच आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर यू, है ना? उनको चाहे बाद में करो। मैंने ये भी गलती करी थी एक बार, मैंने जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट था, तो मैंने सोचा सीक्वेंस में ही चलता हूँ, और उसमें मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया कि बाकी सब क्वेश्चंस बहुत इजी थे और मैं उनको ठीक से नहीं कर पाया, ठीक है? तो डोंट गेट स्टक विद अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डोंट वेस्ट टाइम। जो तुम्हें अच्छे से आते हैं चाहे उनको पहले करो, और खास तौर पे मैं तो ये जब मैं चेक इन करता हूँ, तो हम लोग क्या है ना, उस समय बहुत थके होते हैं, पूरा हीप होता है, आंसर शीट चेक करनी होती है, तो हम लोग ना फर्स्ट पेज बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद हम थोड़ा बस ये देखते हैं कि तुम स्टोरी तो नहीं लिख रहे बीच में। फर्स्ट पेज से हमें आइडिया हो जाता है कि ये किस लेवल का स्टूडेंट है, और उसी के आसपास हम बाद में मार्क्स देते हैं। तो जो तुम्हारा फर्स्ट आंसर है, और खासतौर पे जो फर्स्ट पेज है, वो बड़ा इंप्रेसिव होना चाहिए। तो टेक अप दैट क्वेश्चन विच यू नो द बेस्ट, ओके? लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन है कि नंबरिंग ऑफ योर आंसर ऑन द लेफ्ट साइड बहुत क्लियर होनी चाहिए कि तुम कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हो। इनफैक्ट नॉट वेस्ट टाइम, यू नीड नॉट राइट द क्वेश्चन ऑन योर आंसर शीट, जस्ट द क्वेश्चन नंबर वेरी क्लियरली एंड अ बिग हैंडराइटिंग, ठीक है? और फिर तुम सीक्वेंस अपने हिसाब से रख सकते हो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट व्यू होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सीक्वेंस में आंसर करना चाहिए, वो इवैल्यूएटर के लिए इजी होता है, पर मैं इस बारे में सोचा, मुझे थोड़ा ये लगा कि जो तुम्हें सबसे अच्छा आता है उसको पहले कर लो, जो बहुत खराब आता है उसको लास्ट में करो, ठीक है? ये एक प्रिकॉशन हो गया, राइट? अब तुम्हें पता है तुम्हारे 3 कैटेगरीज के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू, सोर्स बेस्ड, है ना? और फिर हाँ, डिस्क्रिप्टिव बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव में शॉर्ट आंसर भी आ गया और लॉन्ग आंसर भी आ गया।
ठीक है। अब MCQ के लिए तुम लोगों ने काफी देखा होगा, आजकल तो YouTube वगैरह पे हर चीज पे, एक तो तुम लोग सोशल मीडिया बुरा है, ठीक है, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए होता है, चैटिंग के लिए होता है, वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो लोग कुछ करते हैं वो इन चीजों में नहीं पड़ते, ठीक है। लेकिन इंटरनेट पर बहुत कुछ नॉलेज और लर्निंग से एनेबलिंग चीजें भी हैं, उनको जरूर यूज करें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चैट जीपीटी तुमने सबने सुना? तो अभी मैं तुम्हारा जब लेक्चर तैयार कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि ये क्वेश्चन पेपर्स किस टाइप का चेंज हुआ है। जस्ट न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सब चेंजेस है फिर। तो मैं पहले सर्च करने लगा गूगल पर, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा था। फिर मैंने चैट जीपीटी को बोला, लिस्ट द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ क्वेश्चंस इन हिस्ट्री अंडर द ओल्ड सीबीएसई पैटर्न एंड द न्यू पैटर्न। तो उसने 2 सेकंड्स में सारा लिस्ट बना दिया और उसके बाद डिफरेंसेस भी बताए। और उसके बाद फिर चैट जीपीटी क्या करता है, अगला क्वेश्चन जो तुमने नहीं सोचा वो खुद पूछता है कि क्या मैं ये भी कर दूं। तो यूज दिस, चैट जीपीटी को अपना फ्रेंड समझो, ओके। फ्री चैट जीपीटी भी आता है, उसको ऐप को डाउनलोड कर लो और लर्निंग के लिए बहुत यूज कर लो। अभी मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना था लंदन, तो अब मैंने उसको पूछा कि फ्री कॉन्फ्रेंस कौन सी है, लिस्ट देखी। उसके बाद अपने आप पूछता है कि उसको पता है कि मेरे रिसर्च टॉपिक्स क्या है, क्योंकि मेरा सीवी है इंटरनेट पे ना, तो उसको पता है। तो वो कहता है अच्छा योर वर्क इज इन एरिया ऑफ लेबर स्टडीज, मेरा काम, तो क्या मैं इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट भी बना दूं? नेवर कॉपी फ्रॉम चैट जीपीटी। जो कुछ भी आउटपुट दे रहा है उसको कॉपी पेस्ट कभी मत करना, क्योंकि वो आइडेंटिफाई हो जाता है। और क्या है कि बहुत सारे लोग सारे वही आंसर्स लिखेंगे, तो वो सिमिलैरिटी झलकेंगी तो एकदम इंप्रेशन खराब कर देता है। देयर शुड बी सम यूनिकनेस इन योर आंसर, बट टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। एक मैं और एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने अपनी सोसाइटी में एक प्ले कराया, रानी लक्ष्मीबाई का, तो उसका स्क्रिप्ट मुझे लिखना था, क्योंकि मुझे खाली आधे घंटे का था, तो फिल्म वगैरह बनी है वो तो 3 घंटे की। तो चैट जीपीटी ने मुझे 1 से 1 मिनट में स्क्रिप्ट बना के दे दिया, बट इट वाज नॉट वेरी गुड। पर उसने मेरे को फ्रेमवर्क बना दिया कि एक कथावाचक होगा, वो बोलेगा, फिर सीन 1 सीन 2, वो फ्रेमवर्क पूरा आ गया। उसके बाद ऑफ कोर्स आई चेंज इट अ लॉट, डायलॉग्स वगैरह सब मैंने लिखे। तो नेवर यूज चैट जीपीटी डायरेक्टली, बट फ्रेमवर्क वो तुम्हें बहुत अच्छा है। और एक चैट जीपीटी जो बहुत अच्छा काम करता है कि गूगल पे जाओगे तो तुम्हें सर्च करने पड़ेंगे वेबसाइट, चैट जीपीटी खुद ही वो सर्चिंग का काम करके आउटपुट दे देता है। बट डोंट कॉपी पेस्ट इट इन योर आंसर्स, ओके। तो ये खैर था। इसी तरह से यूट्यूब भी, उसमें बेकार चीजें भी बहुत है, लेकिन YouTube, जैसे मैं रोज मॉर्निंग वॉक पे जब जाता हूँ तो करीब 1 घंटा में उठने के बाद ही जो कुछ बहुत अच्छे चैनल्स हैं, जैसे गुड फेलोज करके है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का चैनल है, या हमारे यहाँ अशोका यूनिवर्सिटी का फ्री लेक्चर सीरीज है, तो उसको मैं लगा लेता हूँ। तो आप पर YouTube को आप लिसन कर सकते हो और ईयरफोन लगा के कर सकते हो, कोई और डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वॉक करते हुए कुछ छुटपुट। डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज इट फॉर लर्निंग। जैसे तुम्हें छोटा सा चीज है, बहुत सारी चीजों की जानकारी लोगों से, डॉक्टर से भी पूछेंगे ना, ठीक से नहीं बताते ना, उनका टाइम होता पता नहीं क्या। लेकिन ये तो बेस्ट दुनिया के डॉक्टर्स यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएंगे। सपोज समवन इज हैविंग सम स्ट्रेंज नी पेन इन योर फैमिली, है ना, तुम डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन हो सकता है वो बेस्ट डॉक्टर नहीं है दुनिया का, और दूसरी बात क्या है कि वो इतना टाइम नहीं देते। तुम्हें पौना घंटे का 30 मिनट का बेस्ट वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, अगर तुम टॉपिक डालो, समझ लो। तो ये लर्निंग के लिए हमें इंटरनेट को जरूर यूज करना है, और ये तुम बोर्ड एग्जाम के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको कॉपी पेस्ट मत करना, उसको फिर एडिटिंग आप जरूर करना, उसमें अपने हिसाब से बताना। और क्वेश्चन भी इसीलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाए गए हैं
ताकि तुम्हारा कॉपी के पेस्ट चलेगा नहीं। जैसे समझो क्वेश्चन क्या आएगा, What helped Gandhi ji to be the biggest mobilizer of people in world history? गांधी जी की खास बात क्या थी? उनकी कई कमियां भी थी, हमने सुना होगा गांधी जी को कई लोग बुराई भी करते थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा कमाल का काम किया कि जब अखबार वगैरह कुछ गांव वगैरह में नहीं पहुंचते थे, रेडीमेड में कुछ नहीं था, इतना बड़ा नेशनल मूवमेंट, गांव में जंगलों में कबीले सब जुड़ गए। उनसे पहले भी बड़े बड़े लीडर्स आए थे, तिलक आए, लाजपत राय आए, बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए, लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे थे। उनके मूवमेंट खाली शहरों में होते थे। गांधी जी ने गांव को और इवन ट्राइबल्स जो जंगलों में, उन सबको अचानक जोड़ लिया एक बार में। ठीक है, तो ये वो कैसे कर पाए, क्यों कर पाए ऐसा? ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। What was in Gandhian methods that enabled him to create one of the biggest movements in world history? दुनिया में ऐसी मूवमेंट नहीं हुई है। Across languages, across castes, across classes, women came in such numbers for the first time in politics. Indian women तो पॉलिटिक्स में आती, अभी भी कई women ना डिस्कस ही नहीं करती पॉलिटिक्स, है ना? लेकिन पॉलिटिक्स खाली गलती नहीं होती। पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर एंड ऑल्सो स्ट्रगल अगेंस्ट पावर, फॉर जस्टिस। उसके लिए भी पॉलिटिक्स में आना पड़ता है, राइट? दिस इज व्हाट गांधी शोड, है ना? और वो कैसे कर पाए? अब तुमको क्वेश्चन क्या आएगा, शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ एवर हैविंग यूज्ड गांधीयन मेथड इन योर ओन नेबरहुड। अब यहाँ पे तो चैट जीपीटी हेल्प नहीं कर सकती, वो तुम्हारे नेबरहुड का तो एक्सपीरियंस नहीं बता सकता, राइट? तो इसीलिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि तुम अपने अप्लाइड कुछ अपने पर्सनल लाइफ से ऐड करो आंसर, ठीक है? अब समझ गए? तो ये तुम्हारा, अब जब तुम लिखना शुरू करोगे आंसर्स, ठीक है, अब मैं वो बताता हूँ कि इसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन कैसे लाया जाता है आंसर में। देखो, अगर लॉन्ग आंसर्स है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लिखने से पहले 1 मिनट में पॉइंट्स का स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है? ज्यादातर क्या होता है ना, जब हम लिख रहे होते हैं तो जो जो पॉइंट माइंड में आ रहा हम लिखते जाते हैं, कहीं बोला जाए, है ना? तो वो सीक्वेंस प्रॉपर नहीं होता पॉइंट्स का। ये जो सीक्वेंस पॉइंट्स का है जो तुम्हें लिखने हैं किसी आंसर में, सबसे 2 पेज का आंसर लिखना है ना? तुम्हें 250 वर्ड्स और 50 वर्ड्स के आते हैं ना, तो 150 वर्ड्स का मतलब हो गया करीब 30 लाइन, है ना? 20-25 लाइन। तो उसके लिए यू हैव टू क्रिएट, क्या कहा मैंने अभी, कौन बताएगा? स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंट्स। हाँ, 1 मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम इस तरह से करो, जब मैं लिखता हूँ क्या करता हूँ, जो जो मेरे माइंड में आ रहा है लिखता रहता हूँ, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। फिर उसकी नंबरिंग अपने आप करनी है दोबारा, क्योंकि अभी तो फ्लड ऑफ पॉइंट्स आया माइंड में, तो एज इट इज लिख दिया। देन डू द नंबरिंग, ये पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए, ऐसे। ओके, दिस विल इंप्रूव द कोहेरेंस एंड ब्यूटी ऑफ योर आंसर मेनी फोल्ड। समझ गए? 1 मिनट पहले, और ये काम तुम पहले से भी कर सकते हो। जब तुम तैयारी करते हो ना, तो जब तुम सैंपल आंसर्स लिख रहे हो, तो उनका ये जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंट्स है उसके साथ ही मार्जिन में लिख दो, वो तुम्हें उस समय याद आ जाएगा। ओके, दिस विल हेल्प योर आंसर अ लॉट। दूसरी चीज जो लॉन्ग आंसर में है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होना चाहिए, और एक बीच में कोर ऑफ आंसर, ठीक है? अब ये कैसे बनाते हैं? जैसा मैंने कहा ना, इवैल्यूएटर्स भी शुरू की लाइन ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, और वो अच्छी भी होनी चाहिए, और वहीं पे सबसे ज्यादा दिमाग अटकता भी है। बाकी के पॉइंट तो माइंड में आ रहे होते हैं, स्टार्ट कैसे करें कई बार ये दिमाग में नहीं आता, राइट? तो हाउ टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉन्ग आंसर? तुम बताओ कैसे करते हो? इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए? सर, क्वेश्चंस में वहां से, as we have seen in the chapter that, so questions you should bring. नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, as we have seen in the chapter. Question में से sentence break करके then उसको explain to the point wise. ये लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। देखो,
4 तरीके हैं स्टार्ट करने के। अगर लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर में तो क्योंकि हमें 60-70 वर्ड में लिखना है तो उसमें इंट्रोडक्शन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट आंसर का। लॉन्ग आंसर, और कभी अगर तुम्हें आगे पढ़ोगे कॉलेज में तो फिर तुम 10-10 पेज के आंसर लिखने होंगे, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन कैसे बनाते हैं? सबसे देखो 4 तरीके लिख लो। वेज टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, विद द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। ओके, अभी तुम 4 लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। One way is to start with the importance of the topic which has been asked. Second, it can be with the background of the topic. ठीक है, अभी हम एक ही क्वेश्चन लेंगे और मैं 4 तरीके से बना के दिखाऊंगा। थर्ड हो सकता है, if there is any complex term in the question, so you first define that term. Okay? और फोर्थ एक तरीका हो सकता है कि अगर कोई तुम्हारे को अच्छी सी कोटेशन याद है उस टॉपिक से रिलेटेड, या तो उससे स्टार्ट कर सको। उससे एक लगता है कि हाँ, श्लोक, दोहा, चाहे चैप्टर का चैप्टर के बाद सब लोग तुलसी पर कोई क्वेश्चन आएगा, तो अगर तुम्हें उसके दोहा कोई याद है तो वो इम्प्रेस करेगा, और वो ठीक से याद होना चाहिए, तभी उसको ट्राई करना, वरना मत करना। ठीक है, और कोटेशन मार्क्स तो तभी डालने चाहिए जब ठीक से याद, वरना कोटेशन मार्क्स पर डालना। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं 4 तरीके कैसे स्टार्ट करना है फौरन, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सपोज द क्वेश्चन इज से 1857 का रिवोल्ट की लेते हैं। उसमें क्वेश्चन अगर आया है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द 1857 रिवोल्ट इन इंडिया। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? तो सबने पढ़ा। ओके, अब इसको हम इंपॉर्टेंस से पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, आफ्टर ऑलमोस्ट 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल, द फर्स्ट मेजर अपराइजिंग which shook its foundations was the first war of Indian independence, which is also called the revolt of 1857. ठीक है, ये इंपॉर्टेंस हो गया। तो एक अच्छे सेंटेंस इंपॉर्टेंस को लेके बड़ा ये सबसे इजी होता है ना। सब जो अभी मैं तुम्हें इनवाइट करूं, तुम्हारी टीचर रिटायर हो रही है, तुम्हें अचानक मैम ने कहा कि उनके लिए जरा 2 मिनट बोल के आ जाओ, माइक को बोलो, तुम कैसे एकदम जो ना फर्स्ट लाइन क्या बोली। तो पहली चीज यही है, इंपॉर्टेंस से शुरू करो। मेनी टीचर्स हैव कम इन माय लाइफ बट आई कांट एक्सप्लेन हाउ मच, है ना, दैट इंपॉर्टेंस से। समझ गए? गांधी जी पे सवाल है ना, there have been many leaders on in different nations which got independence, but Gandhi ji has a very special place not only in India but in world history. हो गया इंपॉर्टेंस, राइट? दूसरा तरीका मैंने क्या बताया स्टार्ट करने का? पहले बैकग्राउंड, सेकंड मैंने बताया बैकग्राउंड। अब यही वाला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ 1857। अब बैकग्राउंड से कैसे स्टार्ट करेंगे? इन May 1857 समथिंग न्यू हैपेंड इन मेरठ कैंटोनमेंट, है ना। ये बैकग्राउंड से स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये तो मतलब उसका जस्ट बिफोर हिस्ट्री था, वहां से स्टार्ट हो। ठीक है, अब जैसे अब मैं इसी को लेता हूँ, जैसे टीचर के ऊपर तुम्हें टीचर के फेयरवेल फंक्शन में बोलना है, तो कैसे स्टार्ट करोगे बैकग्राउंड से? ये तो इंपॉर्टेंस हो गया। बैकग्राउंड से कैसे स्टार्ट करोगे? कोई ऐसा इंसिडेंट? ये बैकग्राउंड थोड़ी हुआ। देखो बैकग्राउंड में बताता हूँ। जब मैं पहले दिन स्कूल में आई तो बहुत नर्वस थी, पर इस शख्सियत ने मुझे स्कूल के अनुभव को बहुत सुंदर बनाया, वो थी वो मुझे गेट पे ले गई। ऐसे ये बैकग्राउंड हुआ, आप समझ गए? ये अपनी हैबिट बना लो, इंट्रोडक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक तरीका इंपॉर्टेंस, वो बहुत इजी होता है। अगर कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट माइंड में आ रहा है तो बैकग्राउंड में जाता है, वो ज्यादा लोगों को इम्प्रेस करता है। अगर तुम वो वाला तरीका अपनाओगे तो वो ज्यादा इम्प्रेस करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा पर्सनल कुछ ह्यूमन टच होगा उसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंस तो बड़ी जनरल टर्म्स होते हैं। फिर तीसरा तरीका मैंने क्या बताया इंट्रोडक्शन का?
complex terms Let's defined. define complex. Definitely. Again the question. अब इसको इसमें कैसे करेंगे, ट्राई करो. हाँ. What were the causes of the failure of the revolt of 1855? इसमें एक टर्म है रिवोल्ट. तो रिवोल्ट को डिफाइन कर दो अगर जरूरत लगे. वैसे तो रिवोल्ट सिंपल टर्म है, लेकिन अगर लिखा होता रेवोल्यूशन तो फिर डिफाइन करना जरूरी हो जाता है ना. Before we talk about, कैसे स्टार्ट करोगे? Before we talk about the causes of the failure of 1857 revolution, let us understand what is the meaning of the term revolution. ये स्टार्टिंग हो गया, समझ गए? Revolution means क्या होता है revolution? अभी तुम्हारे बाल लंबे हो रहे हैं, है ना? वो चेंज है, वो रेवोल्यूशन है. टोटल एंड सडन चेंज. रेवोल्यूशन का मीनिंग तो तुम लोग 10th में तुम्हें आना चाहिए. रेवोल्यूशन इज दैट अकरेंस व्हिच ब्रिंग्स अबाउट टोटल चेंज एंड सडनली. टोटल चेंज लॉन्ग टर्म में आता है तो उसको बोलते हैं इवोल्यूशन. रेवोल्यूशन होता है जब सडनली अचानक आता है और बड़ा चेंज आता है. ठीक है, अब याद रहेगा. बट डेफिनेशन का तरीका तभी अपनाना जब तुम्हें सही बात है, क्योंकि अगर पहली लाइन में तुमने गलती कर दी तो इंप्रेशन बहुत खराब हो जाएगा. राइट. सबसे सेफ है इंपॉर्टेंस से शुरू करना. पर अगर तुम्हें डेफिनेशन अच्छे से आती है तो तुम उससे शुरू करो. तुम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछो मुझसे, मैं उसको डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ. चलो पूछ लो कोई टर्म. हाँ, ओके, वेरी गुड. इन अ डेमोक्रेसी, हाँ बिफोर, हाँ वही बता रहा हूँ. चलो कोएलिशन गवर्नमेंट. In a democracy, sometimes one party is not able to attain majority, and in order to form a government, several parties have to get together. Such a government is called coalition. ठीक है? ठीक है? कुछ और पूछना है बताओ. कोई भी डिफिकल्ट टर्म ले लो. डिफाइन करने के लिए ना थोड़ा ज्यादा दिमाग चाहिए होता है. आप लोग बेटा विस्परिंग मत करो प्लीज. अगर कुछ भी बात कहनी है जस्ट रेज योर हैंड. आई एम वेरी हैप्पी टू बी इंटरप्टेड. ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे बीच में रोका जाए. बट रेज योर हैंड, एक एक करके बोलो. ठीक है, कुछ और पूछता है? चलो चले अगले पे चलते हैं. फोर्थ तरीका मैंने क्या बताया, कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, है ना. तो जैसे इस मामले में क्या कोटेशन हो सकती है, 1857 का रिवोल्ट. तो आई जस्ट रिमेंबर कि सावरकर ने वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स वाज रिटन व्हिच डिस्क्राइब कि भाई युद्धि नहीं था ये, खाली सोल्जर्स का रिवोल्ट नहीं था, ये तो इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी. सो यू कैन स्टार्ट विद दैट कोट. The revolt of 1857, which was maligned as a sepoy mutiny by the British, was actually the first war of independence of India. Okay, the quotation से start हो, as said by Savarkar. Okay, और ये तभी करना जब तुम्हें ठीक से याद, वरना कोटेशन मार्क्स पर डालना अकॉर्डिंग टू जनरल वे में लिखना. अब इंट्रोडक्शन समझ गए? ठीक है. अब एक टेस्ट लेता है, एक ट्राई करते हैं. सब लोग क्वेश्चन है. अब ये मैंने इसलिए इतना सिखाया है कि टाइम वेस्ट ना हो. 10 सेकेंड में तुम्हें इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है. ठीक है. सपोज क्वेश्चन इज assess the role of Mahatma Gandhi in India's independence. सपोज ये क्वेश्चन काफी आता है. अब बॉयज में से देखते हैं. बेटा आप पीछे बात करो, आप ट्राई करो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे. चारों जो मैंने तरीके बताए ना इंट्रोडक्शन के, उनमें से कोई भी तरीका ले लो. क्या नाम है आपका? क्या नाम है? उत्कर्ष. हाँ, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. इसका तुम्हें खाली इंट्रोडक्टरी लाइन बताना है, फर्स्ट सेंटेंस. ओके, ओनली दैट. यूजिंग एनी ऑफ द 4 मेथड्स दैट आई हैव टोल्ड यू. क्वेश्चन इज evaluate the role of Mahatma Gandhi in bringing India's independence. कैसे स्टार्ट करोगे? उत्कर्ष,
10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए बेटा। तुम भी बात करो बेटा, तुम ट्राई करो। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक। गुड, तुम ट्राई करो। Evaluate the contribution of Mahatma Gandhi to India's independence. फर्स्ट लाइन कैसे लिखोगे? एक मिनट ट्राई करो। सर ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंस से स्टार्ट हो गया। Sir, Mahatma Gandhi was like a masiha for all the Indians who played a major role in the Indian independence. ओके, ये भी इंपॉर्टेंस हो गया। बैकग्राउंड से कैसे स्टार्ट करेंगे? बिफोर गांधी केम, मेनी लीडर्स ट्राइड टू क्रिएट एन ऑल इंडिया मूवमेंट, बट दे फेल्ड। इट वाज ओनली इन 1919 राउलेट एक्ट सत्याग्रह। क्या हुआ था? राउलेट एक्ट सत्याग्रह। अंग्रेज घबरा गए, ये क्या विस्फोट हुआ, पूरे इंडिया में अचानक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। हाँ, वो तो बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग समझ गए इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं व्हाट टू राइट इन कंक्लूजन। अगर लॉन्ग आंसर है उसके कंक्लूजन में क्या लिखना होता है? हाँ, क्या लिखेंगे उसमें? देखो तुम लोग लिखते जाना, चलो मैं बताता हूँ। देखो कंक्लूजन में क्या करना है, जब भी कंक्लूजन ट्राई करो, अगर टाइम मिल जाए एक लाइन का कंक्लूजन भी लिख दो। लेटर में भी जैसे लिखते हैं ना कंक्लूजन लिखते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को दोबारा से देखो, एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, और उसका एक बैलेंस आंसर समरी में दे दो। मतलब कि समरी जो कुछ तुमने लिखा है उसका एक सेंटेंस में समरी देना है बस। ठीक है, और उसको कोशिश ये करो कि बैलेंस रखो, एक्सट्रीम्स में मत जाओ। जैसे महात्मा गांधी ये क्वेश्चन है, अब हम बैलेंस्ड कंक्लूजन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन था इवैल्यूएट द रोल ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी। अब इसका बैलेंस आंसर क्या था, कंक्लूजन क्या बनाएंगे? ठीक है, So we can conclude that Mahatma Gandhi's courage, strength, determination. It's not a good conclusion. तो ये तो तुम स्पेसिफिक पे चलेगा, हमें ओवरऑल पूरी उसकी एक सेंटेंस में समरी देनी है, और वो भी बैलेंस। बैलेंस का मतलब है कि खाली गांधी जी को भी सारा कंट्रीब्यूशन नहीं देना। तो कैसे लिखेंगे? Here we can say that it was everyone's hard their sacrifice. मार्टरडम, बहुत कुछ हुआ है ना, ब्लडशेड। अभी ये फिल्मों में दिखाते हैं कि कितने लोग प्यार करते थे भगत सिंह से। पिताजी भी मिलने नहीं आए थे जेल में, खाली माँ आई थी जब फांसी लगी। अकेले थे ये लोग, है ना, कोई इनका साथ नहीं देता था, पर फिर भी इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, है ना। तो मेरे ख्याल से 24-25 साल के थे भगत सिंह। जानबूझ के वो शहीद हुए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस करके स्टार्ट कर सकते हो। देयरफॉर आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग that Mahatma Gandhi definitely played a very big role because no one before had been able to mobilize Indians so much, but it would be wrong to say that India's independence came only because of that. ठीक है, ये हो गया ना बैलेंस कंक्लूजन। अब याद रहेगा? Yes. अब आता है सवाल कि बीच में क्या क्या लिखना होता है। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। Related points to the topic. ये क्लैरिटी नहीं है, मतलब बीच में क्या क्या लिखा जाता है। जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उस पे हम एक स्टैंड लेंगे और फिर उसको जस्टिफाई करेंगे फैक्ट्स के साथ, डेटा के साथ, टेबल्स के साथ, मैप के साथ, डायग्राम के साथ। जैसे ये क्वेश्चन था, व्हाट वाज गांधीज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन है ना। हमने शुरू में इंपॉर्टेंस लिख दी गांधी की, कंक्लूजन हमें पता है ये लिखना है,
तो हम बीच में हमने स्टैंड लिया है कि गांधी जी डेफिनेटली प्लेड अ वेरी बिग रोल, बट ही अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, अदर्स आल्सो प्लेड सम रोल। तो अब हम उसको जस्टिफाई करेंगे। बीच का जो आंसर होता है वो सारा जस्टिफिकेशन ऑफ योर कंक्लूजन होता है। तो उसमें क्या लिखेंगे, जैसे पहले तो यही लिखेंगे, बिफोर गांधी अराइवल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कब आए थे 1920, many people have been trying for India's independence, like great leaders like Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, है ना, बाल गंगाधर तिलक, but they could not even create an all India movement, and especially villages did not participate. But when Gandhi started the movement, it became mass movement, one of the biggest mass movements of the world. वर्ल्ड में ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ है जिसमें बच्चे भी जाते थे जलसे में और वापस आ जाते थे, लाशें नहीं आती। ये खूबसूरती थी ना उस मूवमेंट की, ठीक है। तो अब ऐसा हम जस्टिफाई कर रहे हैं, जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट उनके, फिर लेकिन उनके अगेंस्ट में कोई पॉइंट जाता है फिर वो भी लिखो। बट दिस इज नॉट टू से दैट अदर पीपल डिड नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है जो शो करता है कि खाली गांधी जी से हमें आजादी नहीं मिली, कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा? क्या नाम है बेटा आपका? थोड़ा सा गंदी से बोला करो, ऐसे स्माइल करके, इतनी बढ़िया स्माइल है तुम्हारी। देखो बेटा एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सब एग्जाम से छोटी बात है। लाइफ में ना उसके पास बहुत पावर होती है जिससे कोई झगड़ा कर ही नहीं सकता, इतनी पावर होती है उसकी, है ना। अब कौन होते हैं ऐसे जिससे झगड़ा नहीं कर सकते? जो बहुत सिंपल होता है और बहुत विनम्र होता है। बी वेरी पोलाइट, ठीक है, हाँ ये हमेशा रखो। बी वेरी लविंग पोलाइट टू एवरीबॉडी। गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, तुमसे कोई आसानी से झगड़ा कर ही नहीं पाए, ये तुम्हारी बहुत बड़ी पावर होगी। पर ये आसानी से नहीं होता, क्योंकि कई बार लोग गलत समझ लेते, किसी को कोई कान भर देता, कुछ भी समझ लेते, झगड़ा करने आ जाते। तो उसमें क्या करना है, हमें इतना उनके साथ पहले से ही अफेक्शनेट और जेंटल और पोलाइट रहना है, और घमंड बिल्कुल नहीं करना। ये गुस्सा सब घमंड की वजह से आता है, ठीक है। बेटा आप लोग अगर जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बोल के जाना चाहिए। नहीं सर, if they are discussing with me, they have another session. हाँ मैं समझ गया, they must be some. coming to you. नहीं, I am just suggesting. I understand there must be some reason. But टीचर अगर जो बोल रहे हैं ना, तो उससे हमेशा इशारे से ही चाहे परमिशन लेके उठना चाहिए, ठीक है। अभी हम यही बात समझा रहे थे कि अपना मैनर्स बहुत अच्छा रखो, ये तुम्हें एग्जाम से भी ज्यादा लाइफ में काम आएगा। अब हम MCQ का तुम्हें मिल ही जाएगा। MCQ कैसे अटेम्प्ट करने हैं उनमें टिप्स क्या रखें? ऑल द बेस्ट। MCQ के लिए क्या करना है? हाँ वेरी गुड। कभी अगर ना आए, अगर तुम्हें आंसर आता ही है फिर तो किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं आए तो कोई नेगेटिव मार्किंग तो होनी नहीं है, इसलिए छोड़ना मत। और जो अनलाइकली एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? We have to separate those questions which are not related to the topic of the Question is the options given which are totally unlikely, पहले उनको काट दें। हमें ये नहीं पता कि सही क्या है, पर ये तो पता है ये तो नहीं हो सकता, तो उसको काटते जाए तो फिर हम उसके करीब पहुंच जाएंगे जो सही आंसर। हिट एंड ट्राई ये है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ द लीस्ट लाइकली, उसको पहले काट दिया तो हम फिर, ठीक है। हाँ वो तो फिर गैस करना पड़ेगा, तो होना फ्रेंड नहीं कर सकते। हाँ मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि YouTube वगैरह की हेल्प लेनी। अब मोटिवेशन लेवल कैसे बढ़ा? अच्छा हाँ तुमने पूछा था कि प्रिपेयर कैसे करना है, ये तो एग्जाम हॉल में तुम्हें क्या करना है ये बता दो।
उसमें हाँ एक दो चीजें रह गई। एक तो तुम अगर एक्स्ट्रा शीट लोगे ना, उसको कस के अच्छे से थ्रेड से टाइटली बांधना। कभी कभी अलग हो जाती है तो तुम्हारे नंबर छूट जाएंगे, राइट। और नाम वगैरह सब, रोल नंबर वगैरह बहुत सावधानी से लिखना, ठीक है। वो उन लोगों के पास टाइम नहीं होता जब चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, होना चाहिए, ठीक है। Yes, first class. हमें किसी के लिए हंसना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हंसाना चाहिए, तो हंसाने का तरीका तो अपने आप पे हंसाओ, किसी और की हंसी कभी मत करो, है ना। और एग्जाम हॉल का तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। रिवाइज करने का टाइम कोशिश करो मिल जाए तुम्हें, ठीक है। और वो बात ध्यान रखना, थोड़ा फास्ट लिखने की प्रैक्टिस कर लो। और वो जब तुम सैंपल आंसर्स लिखोगे तभी बनेगी। और हाँ, उन आंसर्स को करेक्ट जरूर करवाना। कभी कभी टीचर से उनको लिखवा लो, वरना तुम जो गलतियां कर रहे हो तुम्हें भी नहीं पता चलेगी। इवैल्यूएशन करेक्शन जरूर करवा लो, एक दो आंसर्स टीचर को जरूर दिखाओ, ठीक है। अब हम आते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कुछ स्टूडेंट्स बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, है ना। तो पहली चीज तो उसी को ठीक करना है। टाइम जनरली कहाँ वेस्ट होता है? मोबाइल और फ्रेंड्स, है ना। तो इसको थोड़ा जरूर फ्रेंड्स बनाओ, लेकिन लिमिट रखो, है ना। 1 घंटे से ज्यादा। और कोशिश ये करो कि अगर फ्रेंड्स के साथ हो तो ये नहीं कि बैठ के खाली गप्पे मार रहे हैं यार। पसीना बहाओ, थोड़ा सा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, कोई गेम खेलो, है ना। देखो फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। और स्वेटिंग आउट इज अ वेरी गुड टॉनिक फॉर योर बॉडी, राइट। इट क्लीन्स योर बॉडी। तो पसीना जरूर बहाया करो कुछ ना कुछ, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा कुछ वर्जिश करो, हेवी एक्सरसाइज करो। तुम्हारी एज में तो कुछ नहीं मिले तो अकेले अगर हो जॉगिंग करो, ठीक है। उससे तुम्हारा दिल भी मजबूत होगा, तुम्हारे फेस पे भी ग्लो आएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हारे अंदर मेहनत करने के लिए ताजगी रहेगी। एग्जाम में भी मैंने बताया कैसे करना है। आंसर शीट आते ही कॉलम्स भरने, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है, और थोड़ा सा फास्ट लिखना है, तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बता रहा था कि प्रिपरेशन के टाइम घर पे, स्कूल में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। देखो मैं कोशिश करता हूँ 1 मिनट भी मेरा वेस्ट ना हो, है ना। वॉक भी करता हूँ, थोड़ा तेज चलता हूँ, अपने डेस्क पे मैं जल्दी पहुँचूँ, ठीक है। अगर मैं मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है तो मैं उसको ड्राइव करते हुए सुन लेता हूँ, खाना खाते हुए सुन लेता हूँ, ठीक है। अलग से टाइम नहीं निकालता। मूवीज तो मैं देखता नहीं, कभी कभी देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवीज दुनिया की देखो। ये नहीं कि जो लेटेस्ट आई है वो देखो, हॉलीवुड की, पोलैंड की, रशिया की जो बेस्ट मूवीज है, ठीक है, उनको ढूंढ के देखो। तुम अपनी जिंदगी के 4 घंटे दे रहे हो अगर तुम मूवी देखने जा रहे हो, दिस इज प्रेशियस। पैसे की बात नहीं है, तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है, राइट। और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है मोबाइल को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दो, और मोबाइल खाली लर्निंग के लिए यूज करो। ये एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल मोबाइल जरिया नहीं है। जैसे मैंने कहा मेरा एंटरटेनमेंट क्या है, मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं ड्राइव करते हुए सुन लेता हूँ, नहाते हुए सुन लेता हूँ, चाय बनाते हुए सुन लेता हूँ, लड़ाई करते हुए सुन लेता हूँ। तो टाइम अपना जहां तक हो सके हर जगह टाइम बचाया करो, है ना। और ये फालतू के फंक्शंस में मत जाया करो। और फ्रेंड्स के लिए 1-1.5 घंटा रखो बस। छुट्टी के दिन 2 घंटे, अदरवाइज 1 घंटा बस, ठीक है। और मोबाइल के लिए भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं, ओके। उसके अलावा फिर जब तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा, हाँ एक ये हैबिट और डाल लो कि जब सो रहे होते ना कि लोग उठे नहीं होते, तुम उठ जाओ। जो मोदी जी क्या करते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, योगा भी कर लेते हैं, सारी फाइलें भी देख लेते हैं। वो जितना जो लोग काम शुरू करके 9-10 बजे हो तो सब खत्म कर लेते हैं वो 6 बजे, है ना। तो कितनी बड़ी एडवांटेज है। तुम जब लोग अभी सो रहे हैं, या तो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, तुम उठने की हैबिट डालो। और 2 घंटे कम से कम निकाला करो जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उस समय तुम स्टडी करो। ये तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा लाइफ में।
ठीक है। अब उसके बाद प्रिपरेशन कैसे करनी है? देखो, जब तुम पढ़ने बैठते हो ना, हमेशा पेंसिल और रबर रखो। सारा अंडरलाइन मत करो, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं छपेगा। पर्पस क्या है कि पेज किताब के तुम्हारे दिमाग में छप जाए। जब तुम एग्जाम हॉल में होगे तो वो तुम्हें आजादी से याद आते रहेंगे। अब वो कब छपेंगे? जब तुम सेलेक्टेड वर्ड्स को खाली अंडरलाइन या सर्कल करो। समझ गए? जो तुम्हें नहीं आता था पहले से, खाली उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सर्कल करना। जो लेस इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पहले नहीं पता था लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, उसको अंडरलाइन कर लो। या बगल में एक टिक लगा लो और टिक को सर्कल कर लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ऐसे ये 4 तरीके के मैं मार्किंग करता हूँ अपने जब भी पढ़ता हूँ। मैं तो कई बार न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी ये करता हूँ। क्या मार्किंग है? अंडरलाइन, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सर्कल, जो हमें पहले पता ही नहीं था और नई चीज है, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको टिक कर दिया। और जो हमें दोबारा रिवाइज करते हुए खाली देखना है, उसको टिक को भी सर्कल कर दिया, या टिक के साथ एक डबल वर्टिकल लाइन लगा दी, पैरेलल लाइन। तो वो तुम्हें ना, एक तो रिवीजन के टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, लाइन टू लाइन तो पढ़ना नहीं है, फिर तुम्हें खाली जो मार्किंग है उनको देखना है। और वो तुम्हारे सबसे बड़ी बात होगी, दिमाग में ना फोटो छप जाएगा पेज का। ओके, तो ये पढ़ने का तरीका होगा। पढ़ने के बाद सवाल आता है लिखना। अब लिखने में ज्यादातर लोगों की जान निकलती है ना। कॉपी करना तो आसान होता है, लेकिन अपने आप सोच के लिखना थोड़ा सा दिमाग पे सबसे ज्यादा जोर डलता है लिखने में। ओरिजिनल लिखना, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका है? मैंने बताया ना, जो भी टॉपिक या क्वेश्चन है उसके बारे में जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है, पहले तो रफ पेज पे लिखते जाओ। समझ लो गांधी जी पे मुझे लिखना है, तो मेरे माइंड में आएगा बहुत बड़े मोबिलाइजर थे, और फिर आएगा कि अरे वो तो नोआखाली गए थे जहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी सब जगह, लेकिन उनके रास्ते में ना लेटरिन दिख गई थी गाँव वालों ने, जो वहाँ पे मुस्लिम गाँव वाले थे। ये क्यों आए हमारे यहाँ? तो गांधी जी ने अपनी चप्पलें भी हटा दी कि मैं पैदल चलूंगा। तो इस तरह के काम करते थे, तो फिर वो लोग भी चौंक जाते थे कि किस तरह के, है ना। तो उनकी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनल क्वालिटीज थी वो लिख लिया। फिर उसके बाद नंबरिंग करो कि पहले पेज पे क्या लिखूंगा। मैं तो क्या करता हूँ, हर पेज को भी 2 पार्ट में रखता हूँ। फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट पेज, सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट पेज, फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकेंड पेज, सेकेंड हाफ, ऐसे मैं पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है। अगर लॉन्ग आंसर इस तरह से, जब स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंट्स बन जाए, उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन की अच्छी सी लाइन सोचो और कंक्लूजन सोच लो, फिर लिखना शुरू करो। फिर तुम्हारे लिए लिखना बहुत ईजी हो जाए। समझ गए? और उसको मैंने क्या करेक्ट जरूर करा लो अपने टीचर से। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंट्स है ना, टॉप पे अपने आंसर के फर्स्ट पेज पे लिख दिया करो, वो भी याद रहता है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंट्स ही तो है जो तुम्हें एग्जाम में याद रखता है। वो अगर याद आ जाएगा फिर बाकी तो लिखना आसान हो जाएगा, है ना। तो मैं जैसे ज्यादातर क्या करता था, हमारे को 35 मिनट मिलते हैं एक आंसर में लिखने के लिए बीए में, तो 6-7 पेज मुझे लिखने होते थे, तो मैं हमेशा 6 पेज के लिए 12 पॉइंट्स बना लेता था। उसकी नंबरिंग मुझे याद है, समझ गए? इस तरह से अपना, तो मैं तो इतने लंबे आंसर नहीं लिखते, तो मैं तो मैक्सिमम में कहते 250 वर्ड्स का लिखना है ना। हाँ, तो उस हिसाब से कितने पॉइंट। अच्छा, शॉर्ट आंसर में क्या करोगे? शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर में क्या फर्क होता है? अलग से इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस लिखने की केवल जरूरत नहीं है। शॉर्ट आंसर में जब हम चेक करते हैं ना, तो हम खाली ये देख रहे थे कीवर्ड्स ये आ रहे हैं आंसर में कि नहीं आ रहे, वो आने चाहिए। ओके, हाँ, मैं कह रहा था मोटिवेशन लेवल कैसे। अब कुछ लोग होते हैं ना, 4 तरीके के देखो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं एक बताता हूँ फिर तुम 3 या 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो कि नहीं पढ़ते और एक होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अब उनमें भी 2-2 होते हैं। जो नहीं पढ़ते उनमें कौन से 2 होते हैं? एक तो बिल्कुल ही नहीं है और एक है जो एग्जाम नहीं, एक होता है जो पढ़ के समझते हैं और एक होता है मोटे तौर पर जो नहीं पढ़ते ना, उनमें 2 तरीके के होते हैं। एक वो है जिसको भी पता है मेरे को
मेरे पिताजी ने करोड़ों छोड़ रखे हैं, क्यों पढ़ूंगा, है ना? और एक होते जो समझते हैं कि पढ़ने की जरूरत है लेकिन उनका मन ही नहीं लगता पढ़ने में, है ना? ये उससे दो पेज। अब ऐसे ही पढ़ने वालों में भी दो होते हैं, वो कौन से होते हैं? जो पढ़ता रहता है स्टिल नहीं, जो सारे पढ़ते हैं, जो रेगुलर पढ़ते हैं, उनमें दो तरीके के, जो मतलब स्ट्रैटेजिकली पढ़ते हैं, तरीके से उनकी टेक्निक होती है। और सबसे अच्छे वो होते हैं बेटा जो कि पढ़ाई भी करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी करते हैं, वो बेस्ट स्टूडेंट। खाली पढ़ना मत, अगर खाली पढ़ते रह जाओगे ना, या तो तुम IIT में निकल जाओ, तब IAS बन जाओ, तब तो ठीक, वरना ये पढ़ाई कुछ काम नहीं आएगी। नहीं, जो बैक बेंचर्स है ना, वो तुमसे आगे निकल जाएंगे नहीं, क्योंकि ना तुम्हें ढंग से बोलना आएगा, ना बदमाशी करनी आएगी, ना लड़ना आएगा, है ना? और ना हो सकता है तुम्हारी हेल्थ उतनी अच्छी हो। तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जरूर करनी है, और वो भी ऐसी जिसमें दो चीजें सीखनी होती है पढ़ाई के अलावा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं तुम्हें बता दूं, देखो होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए, है ना? तुम्हें पता है होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए स्कूल कॉलेज में, लेकिन ये तो हो नहीं रहा। ज्यादातर खाली नंबर मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री। अरे भैया, ये जिंदगी में कहाँ काम आनी है? कोई नहीं पूछेगा A+B = होल, कोई नहीं पूछेगा। नहीं, काम क्या आएगा? सबसे पहले देखो समझो, होलिस्टिक के लिए 4-5 चीजें हैं। बौद्धिक विकास के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है, ठीक है? और यही बैक बेंचर्स आगे निकल जाते हैं, वो कई बार फिजिकली ज्यादा फिट होते हैं, जो सोच के चलते हैं दुनिया मेरी जेब में, तो लेकिन हमें उनके जैसा नहीं बनना है, हमें पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी रखनी है भाई, दोनों चीजें रखी जा सकती है। वो होता है अट्रैक्टिव स्टूडेंट, वो होता है आइडियल स्टूडेंट, राइट? फिजिकल फिटनेस। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, सबसे ज्यादा काम आता है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स का क्या मतलब होता है? मतलब मिलनसारिता, लोगों से तुम काम करवा सकते हो, लोगों को साथ लेते हो, फ्रेंड्स बनाने आते हैं, है ना? जो शाहरुख काम करता है, फ्लर्ट करना भी आता है, वो बूढ़ी औरत से भी फ्लर्ट करता है, बच्ची से भी फ्लर्ट, ये सब भी आर्ट है। पर फ्लर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे दोस्त बना पाना, और हाँ, और कन्विंस कर पाना लोगों को साथ ले पाना, ठीक है? तो ये सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी तुम्हें स्कूल अपॉर्चुनिटी देता है सीखने की। अपनी फैमिली में तो सोशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम अगर कुछ भी नहीं करोगे तब भी खाना भी मिलेगा, और बीमार हो जाओगे तो दवा सब मिलेगा, है ना? बेसिक नेसेसिटीज तुम्हारी पूरी होगी। लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होगा, वहां तुम्हें सोशल स्किल्स चाहिए, ठीक है? अपने आप स्ट्रेंजर से इंट्रोडक्शन कर पाना, राइट? किसी मुश्किल मुद्दे पर हेल्प ले पाना और हेल्प दे पाना, ठीक है? कन्विंस करना, हाँ, उसके लिए सोशल स्किल्स होनी चाहिए। अब ये कैसे आएगी बताओ? कई लोग होते हैं ना बहुत शर्मीले होते हैं, अब तो कैसे इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए स्कूल में? एक तो ये कि फ्रेंड तो तुम लोग बनाते रहते हो, फ्रेंड बनाने के लिए तो किसको कहने की जरूरत है, बनाने की कोशिश करोगे। हाँ, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, स्टेज पे जाओ, थिएटर में पार्ट लो, डिबेट में पार्ट लो, जो भी मौका मिले स्टेज पे जाने का छोड़ो मत, ठीक है? और इंटर स्कूल इवेंट्स वगैरह में जाओ, नए एक्वेंटेंस बनाओ, राइट? तो सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज क्या इंपॉर्टेंट है होलिस्टिक पर्सनालिटी में? इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। लेकिन थोड़ा सा हमारे सोशल के अलावा ना, जब हम अकेले हैं तो हम खुश होते हैं। अकेलेपन से भागने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो उसी में होती है जो अंदर से खुश है।
और अंदर से खुश होने के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, देखो सैड सॉन्ग्स क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि रिलेट कर पाते हैं भाई कौन कर पाता है रिलेट? तो हैप्पी सॉन्ग्स भी होते हैं। देखो इसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड होता है कैथार्सिस। कैथार्सिस का मतलब होता है कि हमारे अंदर पेंट अप इमोशन होता है, वो कभी कभी जब आंसू बन के निकल जाता है तो एक अजीब सा रिलीफ देता है, एक ब्यूटीफुल फीलिंग लाता है। ठीक है, तो हमें इसका टेस्ट डेवलप करना है। अगर हम खाली मस्ती करना, किसी को गिरा देना, है ना, प्रैक्टिकल जोक्स करना, खाली इसमें लगे रहेंगे। मैंने देखा है जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं ना, एक्चुअली बहुत ज्यादा खुश नहीं होते। सही बात है ना, जो बहुत ज्यादा ही हंसते रहते हैं वो एक्चुअली ज्यादा खुश वो होते हैं जिनके अंदर खुशी होती है। ये है, इसको बोलते हैं एस्थेटिक्स, टेस्ट फॉर ब्यूटी, और ब्यूटी लाइज मोर इन सैडनेस समटाइम्स रादर देन गिगलिंग। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ठीक है, तो थोड़ा सा सोबर होने का एक शौक होना चाहिए, एक डिग्निटी होनी चाहिए हमारे मैनर्स में। जिस तरह से तुम चलते हो, जिस तरह से तुम खाना खाते हो, जिस तरह से बात करते हो, जिस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, हर चीज में एक ब्यूटी का टच लाने की कोशिश करो। यू शुड बी अ गर्ल। अब ना आए तो कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेट मत होना। देखो ये थोड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि हर बात एक अदा लगती है, समझते हो? अदा उसमें एक खूबसूरती होती है। पर इस सब से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट चीज, बी काइंड, बी हेल्पफुल। देखो तुमने अदा बदा कुछ ना हो, तुम ब्यूटी कुछ ना हो, कोई बात नहीं, बाहर में जाए, ठीक है, लेकिन तुम हेल्पफुल हो कि नहीं? और खाली अपने फैमिली के लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए नहीं, खाली अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है हमें। अब मैं किस लिए यहाँ आया हूँ? देखो अब सोचो जरा, मेरे को कुछ मिलना नहीं है और इतनी मुश्किल से मैं तो परेशान हो गया, यहाँ तक सड़क के मैं कैसे आते हैं? पता नहीं कहाँ से इतनी खराब सड़क थी। अब मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ। ये वाला टेस्ट होना चाहिए अपने अंदर, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या फर्क होता है? ये मैं तुम्हें मोटिवेशन से रिलेटेड बता रहा हूँ कि मोटिवेशन अपना बढ़ाओगे तो मेहनत कर पाओगे। ईगो हो गया कि किसी को कुछ ना समझना, सबको इग्नोर करना। सेल्फ रिस्पेक्ट होगा कि हाँ हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, वहां से हम साइड ले, मतलब प्रिसाइज नहीं है, ठीक है, थोड़ा समझ लो। देखो मैं बताता हूँ, ईगो होती है औरों को दिखाने के लिए, जब और हमारी इज्जत करते हैं उससे हमें खुशी मिलती है, वो है ईगो। हम जब परवाह नहीं करते कि और हमारी इज्जत करते हैं कि नहीं, मेरा दिल मेरी इज्जत करता है, ये है सेल्फ। आप समझ गए? तो ऐसे काम करते हैं, देखो लोग इज्जत करेंगे जब तुम्हारे पास पैसा होगा, जब तुम्हारे पास पावर होगी, कोई बड़ी कुर्सी पे बैठोगे, तो उसके लिए तो फिर तुम करप्ट भी बन सकते हो, पैसे देके भी बड़ी नौकरी ढूंढोगे। नहीं, अगर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई कोई इज्जत करता है कि नहीं करता, मेरे 2-3 दोस्त है, मेरी फैमिली है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई अटेंशन देता है मुझे कुछ जरा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये कितनी बड़ी इंडिपेंडेंस है ना? इसको डेवलप करना। कोई तुम्हारे बारे में क्या कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी फीकी हो, ऐसा नहीं है। 2-3 फ्रेंड्स होने चाहिए अच्छे, बस। उसके अलावा तुम किसी और के बिल्कुल परवाह मत करो, ईगो बिल्कुल खत्म कर लो। और जब ईगो खत्म हो जाता है ना, तो हम फिर गुस्सा भी नहीं करेंगे, घमंड भी नहीं करेंगे, कभी किसी से हमारी लड़ाई भी ज्यादा नहीं होगी। कभी किसी से लड़ना पड़ सकता है न्याय के लिए, जैसे गांधी जी लड़ते थे, है ना? वो अंग्रेजों से भी लड़ते थे, अगर बकरी पे कोई अत्याचार कर रहा है उससे भी लड़ते थे, पर लड़ते थे उसका उनका तरीका क्या था? सत्याग्रह। मैं अपने आप को कष्ट दूंगा अगर तुम गलत काम करोगे, ठीक है? हाँ, अहिंसा और सत्याग्रह। तो हमें इसको बोलते हैं सिविक, अपनी ड्यूटीज निभानी है, हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है, लेकिन बहुत ही विनम्रता के साथ, बगैर गुस्से के। जो गलत काम कर रहा है उस पर भी हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए,
प्यार से समझाना है, कभी कभी उसे पनिश भी करना है, लेकिन गुस्से में नहीं, खाली इसलिए कि वो गलत काम ना करे। प्यार से रखने को फॉर ग्रांटेड हैं? जब कुछ चीजें प्यार से करते हैं तो लोगों में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ हाँ, ये होगा, बिल्कुल होगा। फिर क्या करेंगे? देखो, हाँ देखो, लोगों की चीपनेस से ना कभी भी सरप्राइज मत होना। दुनिया में बहुत चीपनेस है। तुम अच्छा काम करोगे तो बल्कि अगर तुम्हें जरा से लाइक्स मिल गए ना तो जलन भी करेंगे लोग, और वो लोग भी जलन करेंगे जिनको तुम अपना दोस्त समझते हो। अब इससे कभी भी सरप्राइज मत होना। सरप्राइज नहीं होगा तो दुखी भी नहीं होगा। तुम मानते चलो कि 10 में से 8 लोग ऐसे ही हैं। साबोटाज समझते हो? साबोटाज, नो सर। साबोटाज का मतलब होता है किसी को अंदर से चोट पहुंचाना, ठीक है, किसी का काम खराब करना चुपके से। ये लोग करेंगे और तुम्हारे अपने सबसे चाहने वाले भी करेंगे। ये दुनिया ऐसी है, अभी कल अच्छी हो जाएगी, ऐसी इसमें कोई डाउट नहीं है। कल अच्छी दुनिया बनेगी, क्योंकि हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। कल अच्छी दुनिया बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी लोग ज्यादा अच्छे नहीं है। स्विट्जरलैंड चले जाओ, जापान चले जाओ, कोई चोरी नहीं होती, कोई बिलिंग नहीं होती, सब अपने आप बैठे। बेबी को ट्रॉली में छोड़ के अंदर शॉपिंग करने चले, कोई किडनैपिंग नहीं होती। सालों में जाकर के एक कत्ल हुआ था अभी टोक्यो। अब कल हमारा समाज भी ऐसा बनेगा। नहीं, हमसे ज्यादा बुरे हैं बहुत सारे। देखो, अफ्रीका चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, हर घर में गन्स है। इसका मत कर जाते हैं। और सबसे बुरा गैंग रेप्स। मतलब मुझे समझ नहीं आता। देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है, अब तुम लोग को एजुकेशन में तुम्हें समझना चाहिए कि लड़कों में सबसे बुरी चीज क्या लगती है, लड़कियों में सबसे बुरी चीज क्या लगती है। लड़कों में सबसे बुरी चीज लगती है जो ये ताकते रहते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है भैया, तुम्हें इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और लड़कियों में क्या होता है जो बहुत इरिटेट करता है, एटीट्यूड तो बॉयज में भी होता है। एक अलग चीज होती है लड़कियों में, जो एक प्रॉब्लम होती है। देखो, तुम लोग उसको अवॉइड करना। लड़के दिमाग बहुत समझे कि नहीं? मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मेरी वाइफ को कभी लड़ाई हुई ना तो 20-25 साल पुरानी बातें निकालनी। ये रिकॉर्डिंग में दिखा दे। देखो, तुम लोग अवॉइड करना। अगर लड़की लड़के आती है ना किसी से लड़ने, तो उसको सुनाना है सबको। और लड़का लड़के आता है तो पहले तो चुपचाप बैठ जाएगा एकदम कमरे में, चुप, है ना। फिर वो सारा डाइजेस्ट करेगा, फिर किसी किसी को बताएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो एक्सप्रेसिवनेस इतनी ना बढ़ जाए कि दूसरे का दिमाग खाओ। नहीं सर, पर नाउअडेज लड़की तो चुगली को हो रहे हैं, मतलब वो भी दिमाग खाते हैं। गलत संगत में मैं ये कह रहा था कि बहुत अनरिलेटेड बातें कई बार विमेन ज्यादा शुरू कर देती हैं। अब जैसे वो कहते हैं ना कि अगर 2 विमेन बैठी तो बातें तो जरूर करेंगी। नहीं है, शुक्रिया तो लड़के भी करते हैं, पर ये कि उनको बात करने की जरूरत ज्यादा होती है। तो हम लोगों को अपनी अपनी चीज समझनी है। अब जहाँ लड़कियां एक चीज बहुत खराब करती है, फैशन इसलिए भैया सारी फैशन इंडस्ट्री विमेन पे चल रही नहीं। अब मेरे को तो वो लड़की बहुत इम्प्रेस करती है जो बगैर फैशन के पार्टी में आती है। हाँ, वो कितना उसका एक अलग ही तेज दिखाई देता है। हाँ, इतना हमें एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझना चाहिए। बहुत अच्छी किताब है, देखो, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। ठीक है, ये कभी तक तुम्हें टाइम मिलेगा एग्जाम के बाद पढ़ना। पर अभी हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा डाइग्रेस हो गए कि मोटिवेशन लेवल हमें कैसे बढ़ाना है।
और उसके लिए मैंने मेन चीज क्या बताई है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करो और ईगो खत्म कर लो। ईगो खत्म कर लोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और टाइम वेस्ट होता है जब कोई कुछ कह देता है और हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। तो जो लोग थोड़ा अब मैं तुम्हें 4 क्वालिटीज बताता हूँ एंड में, अगर ये अडॉप्ट करोगे तुम्हें पढ़ाई में भी काम आएगी और लाइफ को भी हमेशा काम आएगी। पहली चीज है देखो सिंप्लिसिटी, हिंदी में बोलेंगे सादगी। बिल्कुल साफ सुथरा लेकिन सादा रहना सीखना, कोई शोरशराबा नहीं। दूसरी थोड़ी सी और मुश्किल चीज है मेहनत। टाइम से उठो, रूटीन रखो और कोशिश ये करो कि मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। कभी तो कोई बड़ा साइंटिस्ट या बड़ा लेखक या बड़ा डायरेक्टर या बड़ा एंटरप्रेन्योर बनता है या IAS ऑफिसर बनता है। मेहनत करनी हमको जरूर चाहिए। अगर तुम फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये भी एक अपराध की तरह फील करो, ये ठीक नहीं है। तुम्हें अगर भगवान ने हेल्थ अच्छी दी है, देखो अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम ज्यादा मेहनत नहीं करो, लेकिन अगर तुम्हें ईश्वर ने हेल्थ दी है तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि मैं खाली अपनी फैमिली के लिए नहीं, मैं कंट्री के लिए भी कुछ करूंगा, है ना। वो गाना है ना, तेरी मिट्टी में मिल जाओ, एक थोड़ा तो सेंटिमेंट होना चाहिए ना कंट्री के लिए। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, है ना। और तीसरी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बताया, मेहनत ना भी करो लेकिन हेल्पफुल करो, काइंडनेस रखो, सबसे मीठे से बात करो, है ना। और अपनी लाइफ का एक करियर का एम बनाओ, चौथी चीज, लेकिन करियर ऐसा होना चाहिए जो कंट्री के लिए भी कुछ काम। ओके, अब ये चीजें अगर अपने माइंड में रखोगे तो तुम्हारा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा और उससे तुम्हें बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब मोटिवेशन होता है ना तभी हम होता है कि ठंड में मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं लेकिन मैं अभी पढ़ाई नहीं छोड़ रहा, रात के 11 बज गए लेकिन मैं काम पूरा करके ही सोऊंगा। अब लास्ट चीज मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि जो समझ लो पढ़ाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, कोई बात नहीं, या तो तुम्हारा दिमाग चलता नहीं, या तुम्हें किताब खोलते ही नींद आ जाती है, या ये कि भाई तुम्हें लगता है मेरे फैमिली में इतना पैसा है मुझे पढ़ने से, कोई बात नहीं। अगर तुम ये करना चाहते हो बस किसी एक चीज में एक्सेल जरूर करो, पढ़ाई में मत करो कोई बात नहीं, पर कोई ऐसा हुनर होना चाहिए जिसका तुम्हारे जैसा सानी ना मिले आसानी से। तुम एंटरप्रेन्योर अच्छे बनो, तुम सोल्जर बनो, तुम सोशल वर्क पे जा सकते हो, तुम अब तो फिल्म इंडस्ट्री की खाली बात नहीं है, OTT वगैरह इतना सारे जॉब्स हैं, ठीक है। तुम आर्टिस्ट बन सकते हो, पॉलिटिक्स में जा सकते हो, लेकिन पॉलिटिक्स में जाओ कंट्री को हेल्प करने के लिए, है ना। अब तुम लोग को अगर कुछ पूछना है वरना क्लोज करते हैं। वेरी गुड, इसका मतलब तो देखो तुम सोच रहे हो, इसका मतलब मेरी बात में ध्यान से। कई लोग हैं जो कि चिकने खड़े होते पानी ऐसे ही ले जाता है। मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा, जनरल कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, पर ये सिंबल है कि तुम उनमें नहीं हो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जरूर पूछा करो तुम, मुझे लग रहा है तुम में से कई लोग क्वेश्चन ही पूछते नहीं। हाँ, तुमने पूछा है कि जल्दी उठे कैसे, वेरी गुड, क्योंकि तुम कंसर्न हो कि मुझे ये चीज लानी है, कैसे लाऊं। देखो पहली चीज तो ये है कि मोटिवेशन होना चाहिए। हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी थे ना, उन्होंने बड़ा कितना अच्छा कहा था, सपने वो नहीं होते जब सोते हुए देखते जो हमें साथ में सोने नहीं देते। तो जब तुम्हारा मोटिवेशन लेवल हाई है कि मुझे पापा को डॉक्टर बन के दिखाना ही है ना, तो तुम्हें अपने आप आँख खुल जाएगी। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, कभी कभी अगर ज्यादा नींद आ रही है तो ना मन नहीं कर रहा, ठीक है 10 मिनट तो मैं आराम लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं अच्छा सा म्यूजिक स्टार्ट कर देता हूँ। म्यूजिक में तो बहुत पावर होती है, पर म्यूजिक पता है उसे ज्यादा
इलेक्ट्रीफाई करता है म्यूजिक। हमारे सेल्स में ना इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये म्यूजिक वहां तक पहुंचता है, लेकिन उसी के दिल को पहुंचता है जिसके दिल के तार कसे हैं दर्द से। अब दिल के तार दर्द से कैसे होंगे ये जब सैक्रिफाइस करोगे, जब सैक्रिफाइस करोगे, तुम्हारे साथ कोई गलत करेगा फिर भी तुम उसका बुरा नहीं मानोगे, तो यहाँ एक खजाना बनता जाएगा, है ना। तुम्हें फिर संगीत ही नहीं, नेचर, पत्ते, फूल, हवा, आसमान सब तुम्हें दुलारेंगे। वो सुकून एक बुरे आदमी को नहीं मिल सकता। बुरा आदमी नाच सकता है वो शाहरुख खान पे गाने, लेकिन कभी तुमने ये गाना सुना है, अब के बरस देना भैया को बाबू बुलाए। एक जेल में एक लड़की है, वो तुम लोग कभी कभी ये जो मार्वलस फिल्म्स है ना, इनको जरूर देखना। ये सब मत देखा करो जो कुछ आता रहता है कूड़ा। कभी कभी अच्छे आते हैं, जैसे वीर ज़ारा भी अच्छी आई, लेकिन कभी कभी कोई अच्छी फिल्म आती है, खाली उनको देखा करो, और ये तुम्हें जल्दी उठने में भी मदद करेगा ना। और किसी को सवाल पूछना है? टाइम मैनेजमेंट, वो तो मैंने बताया ना। अगर तुम एक तो ये थोड़ा सा सोने का, आराम का और मस्ती का टाइम जरूर रखना है, मस्ती भी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लिमिट कर लो, 1 घंटे की मस्ती बस, ठीक है। तो फिर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और एग्जाम का तो मैंने बताया थोड़ा फास्ट लिखना। Okay. Sometimes you are very nervous and you think you are very confident, but sometimes you get nervous. देखो Yes. ये अलग पॉइंट है, पहले इसकी बात करते हैं। देखो नर्वसनेस ना अच्छे लोगों में ही ज्यादा होती है, बुरे लोगों में नर्वसनेस नहीं होती। कॉन्फिडेंस होता है। तो बल्कि मैंने कहा ना, दुनिया मेरी जेब में, वो इस तरह से चलते हैं। अब अच्छाई के साथ साथ नर्वसनेस खत्म करनी है, ये ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होता है कि तुम अच्छे भी हो, मेहनती भी हो, सच्चे भी हो, और साथ में नर्वस भी नहीं होगे। वो फिर बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब वो कैसे होगा? पहली बात तो ये कि शुरू में होगी, कोई बात नहीं, वो भी अच्छा इंसान होता है ना, थोड़ा सा सोचता ज्यादा है तो उसमें नर्वसनेस होती है, उसमें चिंता करने की बात नहीं। उसको कम करने के लिए लोगों से इंटरेक्शन एक तो बढ़ाओ, और मैंने कहा ना थिएटर वगैरह, जो मौका मिले स्टेज पर जरूर जाओ, ठीक है। और इंटरेक्शन भी करते हैं। समटाइम जब बिग प्लेटफॉर्म होता है तो अनफॉर्चुनेटली कैसे ही यू फील नर्वस एंड यू कांट स्पीक। हाँ, वो आएगी जब शुरू में, धीरे-धीरे लेकिन हैबिट हो जाएगी, है ना। एक मिनट, पर नर्वसनेस खत्म करने का एक सबसे बड़ा तरीका क्या है? वो ये जो मैंने अभी बताया था कि ईगो खत्म कर दो। जब तुम्हें परवाह ही नहीं है कि मेरी इज्जत करते कि नहीं। देखो मुझ पे भी थोड़ा सा असर पड़ा, तुमने ताली बजाई, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन मैं ज्यादा परवाह नहीं करता। ये बना लो, किसी की तारीफ से बहुत ज्यादा खुश नहीं होगे, किसी की बुराई से कोई बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। और सेल्फ रिस्पेक्ट लेनी चाहिए, ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ। बहुत दर्द है अंदर, लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट का है। दुनिया की इज्जत मिलती है कि नहीं मिलती इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए, फिर तुम नर्वस नहीं हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि मोटिवेशन भी काम नहीं करता। तब तो पानी में हो। जैसे मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने क्या किया है, अपना जॉब से रिजाइन कर दिया, जबकि मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है और मुझे बहुत स्टूडेंट्स अगर इज्जत देते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, वो एक टॉनिक की तरह है। अब मेरे को क्या भूत सवार हुआ, मैंने एक फिल्म देखी थी प्यासा, ट्रेजेडी। तो मेरे को था कि मैं अब डिजाइन करके अब साधु बन के किताबें लिखूंगा। तो उसके बाद लेकिन वो किताबें लिखी मैंने, मुझे वैसा रिस्पांस नहीं मिला जैसे मैं सोच रहा था, तो मुझे डिप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये वही है कि कभी कभी मोटिवेशन ना अच्छे काम के लिए भी जुटाना पड़ता है। कभी कभी
बेटा वैसे तो मैंने 8 किताबें लिखी है, 4 लिखी है हिस्ट्री पे, ठीक है, हिंदी में, और 4 लिखी है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पे। अगर तुम गूगल पे मेरा नाम डालोगे ना आ जाएगा। यूट्यूब पे भी मेरे लेक्चर्स हैं, मेरा नाम डाल के देख सकते हो। सर योर गुड नेम? मेरा नाम है देवेश विजय। हमेशा जब भी देखो तुम कोई भी लेक्चर सुनते हो ना, पेन और पेपर लेके बैठा करो, और सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं? डेट, फिर लिखते हैं टॉपिक बीच में, और फिर राइट साइड पे लिखते हैं स्पीकर कौन है, और फिर सुन तुम ऊपर रहे हो, मुंह तुम्हारा ऊपर है, आंखें ऊपर है, लेकिन पेन अपने आप चलता रहता है। ये हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो जब मोबाइल के साथ रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, लेकिन अब बेटर ये है कि पेन पेपर, हमें तो पेन पेपर की ज्यादा आदत है। और ये रिकॉर्ड, इसको मोबाइल की ताकत को समझो, इसको यूज करना सीखो। अब अगर तुम्हें कोई धमकी दे रहा है, कोई किसी की पिटाई कर रहा है कोई, तो मोबाइल का रिकॉर्डर बहुत काम की चीज है ना। मोबाइल में और भी बहुत सारी यूजफुल चीजें हैं, उनको पॉजिटिव चीजों को हमें लेना है ना। तो मोटिवेशन के लिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग जब कई बहुत सारे सेटबैक्स इकट्ठे आते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हम अगर सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं फिर भी, लेकिन मोटिवेशन कम हो जाता है। तो उसमें ना 2 चीजें काम आती हैं। एक तो ये कि एक तो फ्रेंड्स होने चाहिए, बाकी लोग ही तो परवाह मत करो, लेकिन अच्छा कोई 1 या 2 दोस्त जरूर बनाओ, या तो तुम्हारी फैमिली है ना, या उसके साथ साथ अगर 1-2 दोस्त भी हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये खूबसूरती में बिल्कुल मत जाओ, वगैरह को कभी इंपॉर्टेंस मत देना, ये सबसे खतरनाक चीज है। हाँ, और गुरूर, सिंपल अच्छे फ्रेंड्स 1-2 अपने जरूर बनाने चाहिए, एक तो वो काम आता है। दूसरा, एक आध अच्छी हॉबी जरूर होनी चाहिए, कि जैसे मैंने कहा मुझे म्यूजिक है, हाँ वेरी गुड, म्यूजिक तो बहुत ही सुंदर गिफ्ट है गॉड की, ये डिवाइन चीज है। अच्छा म्यूजिक अगर तुम उसका आनंद ले सकते हो, तुम्हें जेल में भी कोई डालने क्या फर्क पड़ता है? गांधी जी जेल से थोड़ी लड़ते थे, तो वो कहते थे जज से मुझे जेल भेजो, मैंने कानून तोड़ा है। कई बार गए। तो अगर हम सिंपल रहते और हमें अंदर से खुशी हमने ढूंढ ली है, तो हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आप दूसरे को, है ना। तो इससे मोटिवेशन बना रहेगा। खत्म होने वाला है। हाँ ओके, देखो बेटा ये धीरे धीरे आएगा, ये तो अचानक नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। एक तो अपने स्टडी टेबल पे एक कोई फोटो लगा लो जो तुम्हें आइडियल हो, इंस्पायर करे, है ना। और दूसरा, अपना एक गोल रखो कि मुझे ये बनना है, मुझे मम्मी को ये बन के दिखाना है। ये फीलिंग होती है ना, तभी फोकस बनता है। ठीक है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने, मुझे खूब सैंपल पेपर्स ट्राई करो। शुरुआत में कॉपी करो, अगर तुम अपना नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, शुरुआत में कॉपी करो, बाद में धीरे धीरे अपना लिखना तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा YouTube पे ना जो अच्छे लेसन से रिलेटेड है वो भी थोड़े सुन लिया करो, लेकिन उसमें ना कूड़ा भी बहुत है, बहुत सेलेक्ट करके। स्कूल के तो मैंने एक्चुअली ज्यादा सुने नहीं है स्कूल के लेवल के, लेकिन जैसे मैं जो सुनता हूँ यूनिवर्सिटी लेवल के, वो गुड फेलोज मैंने तुम्हें बताया। हाँ, और JNU में थोड़ी प्रॉब्लम है, JNU में थोड़े लेफ्टिस्ट बहुत ज्यादा है, और अच्छे हैं स्पीकर्स में। देखो एक खबर आती है, एक खबरों की खबर कई लोग करते हैं, मतलब न्यूज का एनालिसिस है ना, तो उसमें मुझे एक अनुभव मिश्रा है, वो रात को आते हैं, उनका चैनल का नाम है ढूंढता आईना, वो मुझे अच्छे लगते हैं। मैं खाली वो सुन लेता तो मुझे सारी न्यूज का पता चल जाता। मैं बेटा कॉलेज है एक जाकिर हुसैन कॉलेज, तो मैं वहाँ पढ़ाता था। अभी मेरे 10 साल थे, पर मैंने रिटायर कर दिया और बाद में मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया, लेकिन अब ठीक हो गए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सर। तुम्हारे टीचर से मैं पूछूंगा कैसा रिजल्ट रहा।
पर रिजल्ट के बारे में जैसे मोदी जी कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बॉदर मत करना। देखो पहली बात तो ये है कि ये रिजल्ट लाइफ में इतना काम नहीं आना जितना अभी तुम्हें बता दिया जाता है। अब तो क्या है, यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए भी CUET का अलग एग्जाम होगा, इसलिए नर्वस मत होना जब एग्जाम के लिए जा रहे हो, मस्ती में जाओ, एक एडवेंचर की तरह से जाओ, लेकिन अपना फोकस पूरा स्ट्रॉन्ग रखो, तुम्हारा ध्यान कोई भटका ना पाए, तुम्हारा 1 मिनट भी कोई वेस्ट ना कर पाए, है ना। ये अपनी लगन पूरी रखो, जैसे गीता में भगवान ने कहा निष्काम कर, है ना, फल की ज्यादा चिंता मत करो, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करना है ना, एंड विदाउट चीटिंग करना है। ये क्योंकि आगे, अब जैसे मैं अपना हाँ एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे 12th में बहुत खराब नंबर आए, मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे किसी सोचते थे मैं टॉप करूँ, लेकिन मेरे नंबर आए 56%, पता नहीं कैसे मुझे आज तक समझ नहीं। तो उसके बाद लेकिन मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, उसके बाद कॉलेज में मैंने टॉप किया, तो मुझे कॉलेज से निकलते जॉब मिल गया, है ना। तो मेहनत ना वेस्ट नहीं जाती। हो सकता है किसी एक एग्जाम में तुम्हारे, क्योंकि पता नहीं किसके पास कॉपी चला जाए, पता नहीं कॉपी ठीक से पहुंचे ना पहुंचे, एक्स्ट्रा शीट्स गायब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। सर समटाइम्स तो आंसर की में भी एरर होता है। हाँ, कई चीजें एक्सीडेंट, लेकिन जो मेहनत करता है ना वो एक बार हो जाएगा मिसफॉर्चून, 2 बार हो जाएगा, बार नहीं हो सकता। मैंने अपना केस बताया ना, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने उसके बाद भी फिर अपने चॉइस का सब्जेक्ट लिया और मेहनत करता रहा, और बाद में मेरे को इजीली प्रोफेसर की जॉब मिल गई। ठीक है, तो मेहनत का एक बार में फल ना मिले तो घबराना मत, और पर अपनी मेहनत में कोई कमी मत आने दे, और ये टाइम बिल्कुल मत वेस्ट। टाइम अगर कभी वेस्ट हो रहा है ना, उसके लिए थोड़ा गिल्टी फील करना चाहिए, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट होने देना है, एक मिनट। ये लाइफ हमें देखो, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, आज तक एक पर भी लाइफ नहीं मिली है। ये बहुत ही कीमती चीज है लाइफ, और कुछ दिनों के लिए मिली है तुम्हें एनर्जी, उसका एक मिनट कीमती है। खुश भी रहना सीखो और मेहनत में ही खुशी ढूंढो। कुछ अच्छा काम करने में जो खुशी मिलती है ना, उसका टेस्ट डेवलप करो। इससे किसी की हेल्प रोज एक ऐसा होना चाहिए कि आज मैंने किसी की हेल्प करी। हेल्प कैसे करोगे? अरे अगल बगल में ही कोई हो सकता है, कोई बुरी माँ है, वो उसके ऊपर सता रहा है, कोई पपी है, कोई उसको मार रहा है, कई तरीके हैं हेल्प करने के, है ना। और कुछ नहीं तो तुम खाली अपनी मेहनत ही अच्छे से करो कि तुमने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, ये भी है। इससे बड़ी में ना गौरव की बात नहीं है, टीचर से भी ज्यादा तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, उनकी आंखों में जो खुशी के आंसू आएंगे ना तुम्हारी सफलता पे, उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। और ये तुम्हें करना है ना, इससे तुम्हें मोटिवेशन आएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।